Good morning, students of class 4. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please stay indoors and keep yourself safe. Students, in my last video, I had started with lesson 2, Mayur, the peacock of your Wordsworth English Reader book. And I had explained and written the word meanings and the meaning of phrases. Today, students, I'll be revising the word meanings, reading the lesson and explaining the content. So all of you, please take out your Wordsworth English Reader book and turn the page to page number 9. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn the page to page number 9 as I'll be reading and explaining lesson 2, Mayur the peacock. Students, I'm sure all of you must have written the word meanings and meaning of phrases in your English notebook. Now, first of all, I'm going to revise the word meanings. Then I read the lesson for you and explain the content. Now, the first word is admiring. And the meaning of admiring is appreciating. Admiring, appreciating. The second word, students, is plumage. And plumage means feathers of a bird. Plumage, feathers of a bird. जो किसी भी चिड़िया के पूरे पंख होते हैं उनको क्या बोलते हैं? Plumage. The third word is maintaining. Maintaining means continuing to look after something. किसी भी चीज की लगातार देखभाल करने को हम maintaining बोलते हैं. The fourth word, reasoned, gave suitable reasons about something, है ना? किसी भी चीज के appropriate reasons देना, कारण बताना. They are known as reason. Fifth word is strutted. Strutted means to walk in a proud way with one's back straight and head up. जब हम बहुत शो ऑफ करके चलते हैं, इतरा के चलते हैं, तो हम एकदम अकड़ के चलते हैं, अपनी पीठ सीधी रखते हैं and we held our head up. Fine. तो अकड़ के चलना, when we walk proudly, that is known as strutted. Then the sixth word is gazed. Gaze means stared or looked fixedly. किसी भी चीज को एक लगातार एकटक देखना, घूरना, उसको हम gaze बोलते हैं, stared बोलते हैं या बोलते हैं looked fixedly. Then the seventh word is exclaim. Exclaim means to shout in excitement or happiness, है ना? खुशी में जब हम जोर से excited होके when we shout, that is known as exclaim. Then the eighth word is preening. Preening means cleaning the feathers with the beak, है ना? जो birds हैं वो अपने जो पंख हैं वो कैसे साफ करती हैं? अपनी चोंच से एक एक पंख को साफ करती है and that is known as preening, है ना? So cleaning the feathers with beak is known as preening. Then handsome. Handsome means good looking. But handsome हम किसी मेल के लिए यूज करते हैं. फीमेल के लिए we use pretty, beautiful, gorgeous, whereas handsome we use for males. Then the 10th word is water polo. Water polo is a game played in water with a ball, है ना? पानी में बॉल के साथ गेम खेलना, है ना? उसको water polo बोलते हैं. Then the 11th word is flatten. Flatten means become flat. कभी कभी हम धड़ाम से गिरते हैं और चारों खाने जो चित गिरते हैं एकदम flat हो जाते हैं. That is known as flatten. Okay. Then the 12th word is accidentally. Accidentally, by chance. कोई चीज जो जानबूझ के नहीं हो, एकदम से हो जाए, तो that is known as accidentally. Then the 13th word is slid. Slid means slipped, फिसल जाना. Slid, slipped. Then the 14th word is astonishment. Astonishment means surprise, है ना? एकदम आश्चर्य होना. Then the 15th word is whiz. Whiz means to move quickly through the air with a whistling or buzzing sound. I had explained ना कि आपने रॉकेट देखा, दिवाली पे जो आप रॉकेट छोड़ती हो वो कैसे साउंड के संग हवा में ऊपर जाता है, उसको हम whiz बोलते हैं. Now, these were the 15 word meanings. Besides these word meanings, students, there are two phrases also in the lesson. The first one is keep to himself. That means
to spend a lot of time alone without talking to others, है ना, अपने में ही मस्त रहना, दूसरों से नहीं बातें करना, उसको बोलते हैं कीप टू हिमसेल्फ। दूसरों से जो ज्यादा घुलता मिलता नहीं हो, वो अपने में ही जो रहता है ना, उसको दूसरों से मतलब नहीं, उसको हम उस ऐसे पर्सन के लिए हम क्या यूज करेंगे, कीप टू हिमसेल्फ। देन द सेकंड वन इज मेड अ डैश। व्हाट डू यू मीन बाय मेड अ डैश? रन क्विकली टुवर्ड्स समथिंग, है ना, किसी भी चीज की तरफ दौड़ के जाने को क्या बोलेंगे, मेड अ डैश। फाइन, नाउ आई हैव revise the word meanings and meaning of phrases, students. Now I'll be reading the lesson to you and explaining the content. So all of you, please turn to page number 8 and listen to me as I read the lesson. Lesson to Mayur the peacock. Mayur was a peacock. He lived in Pakshi Vihar, but he kept to himself most of the time. He thought of his looks all day. He never got tired of admiring his beautiful plumage. Once he had noticed a tourist combing her hair, and he had loved the idea of maintaining his plumage all the time. Thus, he had made a comb with a few sticks and carried it everywhere he went. He used it so often that it had almost become toothless now. He sometimes wished he had a mirror to admire himself in, but then he reasoned to himself that at least he could see himself in the clear water of the pond. Every day he strutted down to the pond, opened his tail wide, and gazed at himself. What a beautiful bird I am, he would exclaim. Then he would take out his comb and start preening again. The other birds were tired of asking him to join in their games. Hans, the handsome heron, called out to him one day and said, "Shut your tail and play water polo with us." "No, thank you," said Mayur. "My feathers will get wet and smelly." He then continued to comb his hair. Another time, a brood of ducklings begged Mayur to be their goalkeeper. Till the time their original goalkeeper, the duck, arrived. At first, Mayur was shocked at such a suggestion, but the ducklings begged him to play with them. So he agreed reluctantly. He didn't like his job though. Each time the ball hit his tail, it flattened his feathers. He left the goal wide open every time and rushed to the pond to see how badly his feathers had been damaged. He brushed his feathers all afternoon till they shone again. I look smarter than ever, he thought to himself. All the other birds were tired of his behavior. They could never make Mayur join in any of their games. One morning, Mayur woke up with the first rays of the sun. He made a dash for the pond as usual to admire himself in the crystal clear water. However, something unexpected happened. Somebody had eaten a banana and had accidentally thrown away the banana peel on the ground. Mayur slipped on the banana peel and fell down. He slid right down the bank into the pond with a big splash. All the other birds watched in silence, wondering how Mayur would react. To their astonishment, instead of being angry, Mayur was actually enjoying the water. That banana skin slide was fantastic. I never knew I could whiz so fast. This water feels wonderful.
I must take a dip more often. The other birds could hardly believe their ears. What about your tail, Mayur? The heron asked, but Mayur wasn't listening. He was busy splashing around in the water as he was playing. Mayur realized his foolishness. He decided to stop thinking about his looks so much and starts playing and enjoying like the other birds. All the other birds were very happy. At last, Mayur had stopped thinking about his appearance. He had realized the fun in enjoying the simple pleasures of life. He now played with the other birds and had a lot of fun. Now, students, this was the reading of the lesson Mayur the Peacock. Now, we have read that how Mayur was a person who kept to himself, he kept on admiring about his beauty and he didn't enjoy simple pleasures. But once accidentally he slipped on a banana peel and then he went straight into the pond's water. And that banana peel slide was actually very enjoyable for Mayur. And that day onwards he realized that admiring his beauty did not have so much fun and pleasure what the fun and pleasure had with playing and mixing up with other birds. So that day onwards Mayur realized that he could enjoy a lot more with his friends, the other birds. Now onwards, from that day onwards, he started playing and enjoying with the other birds. Now I'll explain the lesson to you, students. Mayur was a peacock. He lived in Pakshi Vihar, but he kept to himself most of the time. मयूर बेटा एक पीकॉक का नाम था, हाँ, और वो कहाँ रहता था? पक्षी विहार, है ना। हम लोग की जैसे अलग अलग कॉलोनी है ना, आप लोग कोई कुंती विहार में रहते हैं, कोई मयूर विहार में रहता है, कोई अशोक विहार में रहता है ना, सबके डिफरेंट कॉलोनीज हैं, एरियाज हैं। सेम वे मयूर पक्षी विहार में रहता था। पक्षी विहार मीन्स वो एरिया जहाँ पे खाली बर्ड्स रिसाइड करते हैं। विहार का मतलब होता है रिसाइडिंग प्लेस। तो मयूर जो है यूज टू रिसाइड इन पक्षी विहार वेयर ओनली बर्ड्स यूज टू रिसाइड। बट वो व्हाट काइंड ऑफ अ बर्ड वाज मयूर, है ना। ही वाज अ सेल्फ सेंटर्ड बर्ड। मयूर जो है हमेशा अपने ही बारे में सोचता था, उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं था। वो खाली अपने बारे में ही सोचता रहता था, उसको दूसरे बर्ड से कोई मतलब नहीं था। neither used to talk with them, nor used to play with them. He thought of his looks all day. He never got tired of admiring his beautiful plumage. अब वो क्या करता था? पूरे दिन वो अपने looks के बारे में ही सोचता रहता था कि how beautiful I am, है ना। He was so conscious about his beauty that every day he used to think about his looks only. He never got tired of admiring his beautiful plumage. Now in the picture you can see जो मयूर है पीकॉक, उसने अपने पंख कैसे फैला के रखे और वो पूरे दिन क्या करता था? अपने पंख फैला के और अपने जो ब्यूटीफुल फेदर्स है उनको देख के एडमायर करता था। एडमायर करना, निहारता रहता था। देन अपने मतलब निहार के खुश होता रहता था कि हाउ ब्यूटीफुल मेरे जो प्लूमेज है, the feathers are so pretty, so beautiful, I look so handsome. So he was very conscious about his beauty. So what he used to do? All day he used to keep on thinking about his appearance कि मैं कैसा दिखता हूँ, how beautiful my feathers are, है ना। और वो जब भी उसको खाली वो रहता था तो वो अपने plumage, अपने feathers को पंख फैला के admire करता रहता था। all day he used to not get bored. बस वो अपनी सुंदरता, अपने ही बारे में सोचता रहता था। Now once he had noticed a tourist combing her hair and he had loved the idea of maintaining his plumage all the time. अब आपने देखा है ना, आप आई होप एवरीबडी हैज बीन टू सारनाथ। सारनाथ में भी एक पक्षी विहार है जहाँ एक बड़े से केज में बहुत सारे काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैं, है ना। तो वहां पे आप जब देखते हो बर्ड्स को तो आप क्या हो जाते हो? टूरिस्ट आते हैं जो बर्ड्स को देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स को देखते हैं।
तो सेम वे पक्षी विहार में कोई टूरिस्ट आए थे जो देख रहे थे बर्ड्स को। तो मयूर ने नोटिस किया एक टूरिस्ट मीन्स जो कोई जगह को देखने जाता है उसको टूरिस्ट बोलते हैं। तो मयूर ने नोटिस किया कि एक टूरिस्ट जो है उसके हाथ में कोम थी, कंघी थी। और वो टूरिस्ट, आपने देखा है ना, कुछ लोग दे आर वेरी कॉन्शियस, वो बार बार कोम निकाल के दे कीप ऑन कोम्बिंग देयर हेयर बिकॉज दे आर वेरी कॉन्शियस कि हमारे बाल खराब तो नहीं हो गए, इजंट इट। तो मयूर हैड नोटिस कि एक टूरिस्ट के हाथ में कोम थी और वो टूरिस्ट कोम से अपने बाल ठीक कर रही थी। सो मयूर को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, है ना। सो उसको आइडिया अच्छा लगा कि अगर मेरे पास भी एक कोम होती तो मैं भी अपने प्लूमेज को कोम कर करके और उसको बहुत चमका के साफ करके रख सकता अपने प्लूमेज को, अपने फेदर्स को। सो ही हैड लव्ड द आइडिया। और वो उसको आइडिया कहाँ से मिला? फ्रॉम अ टूरिस्ट हु वाज कोम्बिंग हर हेयर। मयूर को कोम का आइडिया एक टूरिस्ट से मिला जो टूरिस्ट पक्षी विहार में बर्ड्स देखने आई थी और वो अपने बालों को, हेयर को कोम कर रही थी। एंड मयूर ने देखा तो ही गॉट द आइडिया ऑफ दैट कोम एंड ही थॉट दैट दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। मेरे पास भी कोम होती तो मैं भी अपना जो प्लूमेज है वो क्लीन कर सकता, मेंटेन कर सकता। Thus he had made a comb with a few sticks and carried it everywhere he went. तो मयूर को टूरिस्ट से आइडिया मिला तो उसने क्या किया, बहुत सारी सूखी लकड़ियां बटोरी, उनको बांधा और उसने अपने लिए एक ब्रश जैसा कोम बना लिया। He got the idea from the tourist. एंड वो क्या करता था, वो बार बार उन स्टिक से जो उसने कोम बनाई थी उससे अपने जो प्लूमेज है उसको क्लीन करता रहता था। और वो जहां भी, wherever he used to go, he used to carry his comb which was made out of sticks with him everywhere, है ना। and wherever Mayur used to go, he used to carry his comb along with him everywhere. He used it so often that it had almost become toothless now. आपने देखा है ना, आपकी कोम जो बहुत ज्यादा यूज करते हो, बहुत पुरानी हो जाती तो उसके जो टूथ हैं, उसके जो दांते हैं कंघी के, वो घिस जाते हैं या टूट जाते हैं, है ना। सो वो क्या हो गई थी, टूथलेस हो गई थी यूज करते करते। तो सेम वे मयूर ने जो ओल्ड स्टिक से अपनी कोम बनाई थी वो इतनी यूज की थी कि वो टूथलेस, उसकी ऑलमोस्ट जो स्टिक्स हैं वो टूट के, घिस के खत्म हो चुकी थी। He sometimes wished he had a mirror to admire himself in, but then he reasoned to himself that at least he could see himself in the clear water of the pond, है ना। मयूर को कभी कभी बहुत इच्छा होती थी कि आई विश आई हैड अ मिरर, कि काश मेरे पास एक मिरर होता। मिरर जानते हो ना, बड़ा सा शीशा। आप मॉर्निंग में उठते हो, यू गेट रेडी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू comb your hair, you apply cream, you apply deo, whatever, आप जो भी कुछ अप्लाई करते हो आप मिरर के सामने करते हो बिकॉज यू आर कॉन्शियस अबाउट योर लुक्स, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, एम आई लुकिंग स्मार्ट, है ना। सो मयूर यूज्ड टू विश कि इफ आई हैड अ मिरर, काश मेरे पास एक मिरर होता तो मैं अपनी ब्यूटी जो है उस मिरर में क्या करता, एडमायर करता। But then he reasoned himself that at least he could see himself in the clear water of the pond. फिर मयूर अपने आप को रीजन भी देता कि कोई बात नहीं, कोई नहीं, आई डोंट हैव अ मिरर, नो प्रॉब्लम, आई कैन एडमायर माई ब्यूटिफुल प्लूमेज इन द वाटर ऑफ द पॉन्ड। कि ये पक्षी विहार में एक बड़ा सा पॉन्ड था, पानी का पॉन्ड था। तो मयूर अपने आप को रीजन देता है, कोई बात नहीं, मिरर नहीं है तो क्या हुआ, एक पॉन्ड तो है जिसमें मैं वाटर में अपना रिफ्लेक्शन, अपनी ब्यूटी को मैं एडमायर कर सकता हूँ, निहार कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास मिरर नहीं है तो क्या हुआ, आई हैव अ पॉन्ड, और जो पॉन्ड का जो वाटर है दैट इज वेरी क्लियर, उसमें मुझे एकदम क्लियरली अपना ब्यूटिफुल प्लूमेज, माई ब्यूटिफुल अपीयरेंस आई कैन सी इन द क्लियर वाटर ऑफ द पॉन्ड। तो मयूर ये अपने आप को रीजन देता था कि मिरर नहीं है, इच्छा तो बहुत थी कि मिरर हो तो मैं दिन भर देखता रहता, लेकिन मिरर नहीं है तो क्या हुआ, जो पॉन्ड के पानी में, पॉन्ड की परछाई में, क्लियर में, रिफ्लेक्शन में मैं अपने आप को एडमायर कर लेता हूं। So every day he strutted down to the pond, opened his tail wide and gazed himself, है ना। What a beautiful bird I am, he would exclaim, ठीक है। अब मयूर का रोज का रूटीन क्या था, यू कैन सी इन द पिक्चर। मयूर आप पिक्चर में देख रहे हो ना, वो रोज क्या करता था, वो रोज ही स्ट्रटेड डाउन, स्ट्रटेड का मतलब हमने पढ़ा है ना,
बहुत घमंड में पंख फैला के वो कहाँ आता था, पॉन्ड की तरफ चल के जाता था. He used to keep his back straight, अपना सिर ऊंचा करके, because he wanted to show off to other birds कि I'm the most handsome bird, I've got the most beautiful feathers. तो वो बहुत इतरा के अकड़ के रोज पंख फैला के he used to go where? He used to strut down, he used to go down to the pond. वो रोज पॉन्ड में क्या करने जाता था? To admire his beauty. वो अपनी ब्यूटी पॉन्ड के वाटर में देखने जाता था. और वो वहां जाता था खूब इतरा के अकड़ के, कीपिंग हिज हेड अप, हाँ, घमंड में कि आई एम द मोस्ट हैंडसम बर्ड, आई हैव गॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल फेदर्स. सो वो स्ट्रट डाउन करता था टू द पॉन्ड, और पॉन्ड में जाके यूज्ड टू गेज एट हिमसेल्फ, अपने पूरे पंख फैलाता था पॉन्ड के सामने और पूरे समय अपनी ब्यूटी को लगातार कंटिन्यूसली देखता ही रहता था कि हाउ ब्यूटिफुल फेदर्स आई हैव गॉट, हाउ हैंडसम आई एम. एंड देन यूज्ड टू एक्साइटमेंट एंड आउट ऑफ हैप्पीनेस व्हाट यूज्ड टू एक्सक्लेम, वो खुशी के मारे क्या चिल्लाता था? What a beautiful bird I am, कि what a beautiful bird I am, कि मैं बहुत ही सुंदर बर्ड हूं, used to exclaim. Then he would take out his comb and start preening again. और वो अपनी ब्यूटी वाटर में निहारता था. used to walk arrogantly towards the pond, खूब अकड़ के घमंड में इतरा के जाता था, showing off the other birds that I am the most beautiful birds, I've got the most beautiful feathers, I'm the most good looking bird. And pond में जाके used to keep on looking at himself, and वहां जाके used to open his plumage, अपने जो पूरे पंख है वो फैलाता था, and then he used to take out his comb and start preening his feathers, और अपनी जो comb उसने स्टिक से बनाई थे उससे वो अपने पूरे plumage को क्लीन करता था. The other birds were tired of asking him to join them in their games, है ना. अब आप लोग भी अपने फ्रेंड्स गेम खेलते हो फ्रेंड्स के संग, बट आपकी भी इच्छा होती है कि जितने ज्यादा बच्चे खेलेंगे उतना आप इंजॉय करोगे, उतना मजा आएगा, isn't it? बट आप देखते हो कुछ कुछ बच्चे वो नहीं खेलना मांगते. आप एक बार उनसे बोलोगे कम प्ले विद अस, है ना, 2 बार बोलोगे, बट इफ दे कीप ऑन रिफ्यूजिंग, आप बाद में उनसे पूछोगे ही नहीं कि आपके संग गेम खेलें. सो द अदर बर्ड्स ऑल्सो, पहले तो वो मयूर से पूछते थे कि कम एंड प्ले विद अस, बट मयूर यूज्ड टू नेवर ज्वाइन देम, कभी भी वो उनको गेम्स में ज्वाइन नहीं करता था. सो नाउ द अदर बर्ड्स थक गए थे पूछ पूछ के, सो नाउ दे हैड स्टॉप्ड आस्किंग हिम टू ज्वाइन देम इन देयर गेम्स. तो क्योंकि दे न्यू कि मयूर तो वो अपने में ही मस्त रहता, ही जस्ट kept to himself only, he used to just admire his beauty, he was not bothered about the others. So the other birds, they used to now not even ask him to play with him. Hans the handsome heron, है ना. अब आप हेरॉन जानते हो ना, हेरॉन भी एक बर्ड होती है. अगर आप सारनाथ पक्षी विहार जाओगे तो आप देखोगे एक व्हाइट रंग की बड़ी सी बर्ड होती है हेरॉन, उसको सारस भी बोलते हैं, ठीक है. सो देखने में हंस इज ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग, वेरी हैंडसम. बट बेटा हैंडसम हम मेल के लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए वी यूज ब्यूटिफुल. सो हंस द हैंडसम हेरॉन, ही कॉल्ड आउट टू हिम वन डे एंड सेड, एक दिन हंस हेरॉन ने मयूर को बुलाया और कहा, व्हाट डिड ही से टू मयूर? ही सेड, शट योर टेल एंड प्ले वाटर पोलो विद अस. हंस ने बोला, अरे अपनी जो ये पंख तुम फैला के रखे हो, शट योर टेल, अपनी टेल बंद करो और आओ हमारे संग वाटर पोलो खेलो. नो थैंक यू सेड मयूर, माई फेदर्स विल गेट वेट एंड स्मेली. ही देन कंटिन्यूड टू कोम हिज हेयर. तो जब हेरॉन ने उसको बोला कि अपनी जो टेल है इसको बंद करो और आओ हमारे संग वाटर पोलो ज्वाइन करो खेलने में. So Mayur said, no, thank you. No. My feathers will get wet and smelly. Mayur said कि अगर मैं तुम लोग के संग वाटर पोलो खेलूंगा तो मेरे जो ये ब्यूटिफुल फेदर्स हैं ये वेट हो जाएंगे, भीग जाएंगे, और भीग जाएंगे तो दे विल स्मेल, इनमें से बदबू आने लगेगी. आपने देखा है ना कि बर्ड्स, एनिमल्स जब वो स्पेशली रेन्स में या पानी में भीग जाते हैं तो टिपिकल सी स्मेल आती है उनके फेदर्स से या उनके फर से. सो मयूर वॉज कॉन्शियस, ही सेड कि नहीं, इफ आई प्ले वाटर पोलो विथ यू, मेरे जो फेदर्स हैं ये वेट हो जाएंगे एंड देन दे विल बिकम स्मेली, इनमें बदबू हो जाएगी. एंड देन ही सिंपली स्टार्टेड टू कोम हिज
hair, और वो अपने feathers है उनको comb करने लगा. He refused the handsome heron that I don't want to play water polo. Now, he refused which bird? The handsome heron. Now, another time, a brood of duckling begged Mayur to be their goalkeeper. अब दूसरे बार brood of duckling, आपको पता है ना, जो duck है उसके बच्चों के झुंड को ब्रूड ऑफ डकलिंग बोलते हैं. दैट्स अ कलेक्टिव नाउन. जब बहुत सारे डकलिंग्स एक साथ होते हैं तो उनके लिए जो कलेक्टिव नाउन है, व्हाट इज दैट स्टूडेंट्स? अ ब्रूड ऑफ डकलिंग. दिस इज अ कलेक्टिव नाउन. व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन चिल्ड्रन? अ ब्रूड ऑफ डकलिंग्स. बहुत सारे डक्स के बेबीज जब एक साथ होते हैं तो उनका कलेक्टिव नाउन क्या है? ब्रूड ऑफ डकलिंग. जैसे अ लिटर ऑफ पपीज होता है कि डॉग के छोटे बेबीज का जब बहुत सारे होते हैं तो उनको लिटर बोलते हैं. सेम वे डकलिंग्स के बेबी जब बहुत सारे इकट्ठे हो तो उनको क्या बोलते हैं? ब्रूड. इन द पिक्चर यू कैन सी अ ब्रूड ऑफ डकलिंग्स विथ मयूर द पीकॉक. कैन यू सी द डकलिंग्स along with Mayur? So, brood of ducklings is the collective noun for lot of baby ducks together. Fine. So, another time, a brood of ducklings begged Mayur to be their goalkeeper. Now, what happened? Next time, a brood of ducklings, they were playing. So, they begged. Beg करना, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, है ना, मयूर को कि प्लीज प्लीज प्लीज, है ना. कभी आपको भी कुछ करवाना होता है तो आप भी बेग करते हो प्लीज प्लीज प्लीज, है ना. यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन तो आप बहुत बेग करते हो प्लीज 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 करके. जब हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर बेगिंग, है ना. तो वो दे बेग मयूर टू बी देयर गोलकीपर. उन्होंने मयूर से बहुत बेग किया कि प्लीज मयूर, प्लीज बी आवर गोलकीपर till the time their original goalkeeper the duck arrived. उनके जो original goalkeeper जो duck थी, हो सकता है she was busy with some work, she couldn't join them, so they requested, they pleaded Mayur to be their goalkeeper. उन्होंने मयूर को बहुत रिक्वेस्ट की कि जब तक हमारी जो गोलकीपर है, हाँ, वो डक ओरिजिनल गोलकीपर, वैसे तो उनकी डक जो थी वो हमेशा गोलकीपर बनती थी, बट उस दिन वो डक को थोड़ा काम था तो दे सेड कि जब तक वो डक खाली नहीं है, फॉर दैट टाइम प्लीज बी आवर गोल कीपर. सो दे रिक्वेस्टेड मयूर कि हमारे गोल कीपर बन जाओ. वी आर प्लेइंग जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. जब तक वो डक नहीं बनती है गोल कीपर, उतने टाइम के लिए आप हमारे गोल कीपर बन जाओ. At first, Mayur was shocked at such a suggestion, but the ducklings begged him to play with them, so he agreed reluctantly. शुरू में तो मयूर को एकदम शॉक लगा कि अरे हाउ कम, ये मुझसे कैसे बोल सकते हैं? दे नो कि मैं तो कोई गेम वेम नहीं खेलता हूँ, तो इन्होंने मुझसे क्यों बोला? बट वो डकलिंग्स ने इतना रिक्वेस्ट किया दैट मयूर एग्रीड रिलक्टेंटली. हमने रिलक्टेंटली वर्ड द क्लेवर जैकल में भी पढ़ा है ना. रिलक्टेंटली मीन्स अनविलिंग, है ना, इच्छा नहीं होना. कोई काम जिसके अंदर से इच्छा नहीं होना पर जबरदस्ती करना पड़ता है, तो दैट वर्क वी डू रिलक्टेंटली. सो मयूर वॉज नॉट विलिंग टू प्ले विद द डकलिंग्स, बट देन दे रिक्वेस्टेड हिम so much that he agreed reluctantly. मन नहीं था फिर भी वो मान गया उनका गोलकीपर बनने के लिए. And he didn't like his job, है ना, उसको गोलकीपर बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. Now why? Each time the ball hit his tail, it flattened his feathers. अब जब वो डकलिंग गोल मार रहे थे और ये तो गोलकीपर बना था, गोलकीपर का क्या काम होता है? गोल को रोकना, पोस्ट में बॉल को जाने से रोकना. तो अब उस बॉल रोकने के चक्कर में क्या हो रहा था? वो बॉल जो है उसके फेदर्स पे लग रही थी, और उसके फेदर्स पे लग रही थी तो उसके फेदर्स को जो उसने खूब चमका के और अच्छे से रखे थे फैला के, वो चपटा कर दे रही थी. बॉल प्रेशर से लग रही थी और उसके जो फेदर्स है, सुंदर सुंदर फेदर, उसको फ्लैट कर दे रही थी. सो ही लेफ्ट द गोल. और जैसे ही जब भी उसको बॉल लगती उसके फेदर्स पे, तो मयूर क्या करता था? वो गोल छोड़ के भाग जाता था और पॉन्ड में जाके हर बार देखता था कि मेरे जो पंख है, हाउ बैडली हिज फेदर्स हैड बीन डैमेज, कि बॉल से मेरे जो पंख हैं वो क्या हो गए, कितने खराब हो गए, कितना नुकसान हो गया बॉल लग के. और गोल को ऐसे ही खुला छोड़ के चला जा रहा था. सो
he brushed his feathers all afternoon and he was not bothered कि भाई उनका गोल हो जाएगा कुछ नहीं, but he was bothered about his feathers. So each time the ball hit his feathers, what he used to do, he used to rush to the pond and then he used to see how badly his feathers had been damaged, कि मेरे जो feathers हैं वो कितना उनका नुकसान हो गया बॉल लगने से. So he brushed his feathers all afternoon. वो पूरी afternoon अपने feathers को brush करता रहा till they shone again. और इतना ज्यादा उसने brush किया कि फिर से उसके feathers हैं वो shone is the past tense of shine, कि जब तक उसके जो feathers हैं वो चमकने लगे. I look smarter than ever, he thought to himself. और फिर मयूर ने क्या सोचा कि I look smarter than ever, कि मैं पहले से भी और ज्यादा smart लग रहा हूं. Fine. So I hope अभी यहाँ तक सबको स्टोरी समझ में आ गई है. Now I'll be continuing the story in my next video. That's all for today, students. Till then, please do read this lesson again and again so that when I continue with the explanation, you will be able to understand it easily. That's all for today. Thank you, students. Good day ahead.